Good morning, everyone. We'll wait for a few seconds. There are 19 participants as of now. Let's wait for a few more seconds so that there are all more participants who can join in. Meanwhile, if anybody has any doubt in any of the segments that we have covered through YouTube classes, please ask your doubts. You can write it down in your chat box. If anybody has any doubt, go ahead and ask. Okay, I'm not finding anybody who's writing doubts. Okay, so let's continue with today's class. So we have already understood the systems of accounting. The system of accounting that we have covered yesterday includes two systems of accounting. One is the double entry system, the other one is single entry system. So double entry system, as in the name itself is suggesting, that double entry system, we are going to have two aspects of every financial transaction that we are going to record. One is debit, the other one is क्रेडिट. और जो भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल्स व्हिच आर ऑलरेडी existing, which has been made, and which are called concepts and conventions. And concepts are the assumptions and conventions are the customs, right? And single entry, which is used by the small traders or the small businesses, which is basically used to maintain the record for their own purposes. That means they do not publish their accounts to anybody else, but they are going to maintain it only for their own self and for serving their own needs. So that is going to be used. The single entry system is going to be used only by the small businessmen or small traders, right? So every other organization is going to use the system of double entry bookkeeping only to prepare their accounts. Now let's come on the last segment of the chapter. जो हमारा ब्रांचेस का एक सेगमेंट रह गया है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एज सच पूछा भी नहीं जाता, राइट? बट वो मैं आऊंगी जब बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, जब क्योंकि उसमें जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो अकाउंट्स के आपके डिफरेंट टाइप्स लिखे हुए हैं, वो सब अभी आप पढ़ने नहीं वाले हैं. आप जो अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डील करता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, विच यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट? तो इसके अलावा कौन सी और टाइप्स की अकाउंटिंग होती है वो हम सब डिटेल में जानेंगे, मगर धीरे धीरे करते हुए, राइट? तो अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको हम फिनिश करेंगे आज, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट very important topic of our syllabus, which is the terms, which will actually help you in understanding that what are the various terms that we are using or we are going to use in accounting, right? So let's start with this role of accounting. Okay, role of accounting जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमको समझ में आता है कि अकाउंट्स, जब अकाउंट्स हमने शुरुआत की उसकी, तो हमने शुरू में पढ़ा कि अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. इन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट मींस व्हिच हैज गॉट money involved in it, is going to be recorded in our books of accounts. तो हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई इट, देन वी रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री विच इज कॉल्ड जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, then we classify it in ledger, then we summarize it in trial balance, and then finally we prepare the final accounts based on the trial balance that has been prepared. And final accounts includes our trading account, profit and loss account and balance sheet, right? और जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द पार्टीज इंटरेस्टेड, एंड आवर पार्टीज इंटरेस्टेड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज इंटरनल, द अदर वन इज external. I think there is no doubt to anybody in any of the topic dealt till here. And जो भी मैंने अभी आपको बोला ये सब बातें सभी को पता है और याद है. अब हम चलते हैं हमारे रोल में. तो if we are going towards role, the first role that the accounting is performing is role as a language of business. Okay, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है, आप अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और उसके बेसिस पे हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जो बिजनेस में परफॉर्म किया जा रहा है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको कम्युनिकेट करने का
क्या तरीका है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक ही लैंग्वेज है और वो है हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स. दैट मीन्स द बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड and then it is going to be communicated to the parties interested so that they are knowing that what is that and how is the business performing during the year, right? So this is actually, accounting is actually serving the role of a language for communicating everything that is financial in nature and that is taking place in a business during a period of 1 year, right? So this is the first point. I suppose there are no doubts in it. Let's move on to the next point, which is role of information system. ओके, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मुझे कंपनी के बारे में जानना है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसको जब वो कम्युनिकेट कर रही है टू द पार्टीज इंटरेस्टेड, सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग देम द डेटाबेस फ्रॉम विच दे कैन रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, from which they can review the income position of the business, and based on that they can take their respective decisions, right? हालांकि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है कि जो भी कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है अकाउंट्स के बारे में, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है. दैट मीन्स इट इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनी काइंड ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब who all are the managing directors of the company, or who is performing from how many years, or maybe we can say who are the suppliers of the company, who are the bankers of the company. ये सब चीजें आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये समहाउ ऑर्गेनाइजेशन रिवील नहीं करती है अपने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर, जिसकी वजह से आपका इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, वो मिल तो रहा है मगर वो आप उसके ऊपर पूरी तरीके से रिलायबिलिटी के साथ उस पे डिसीजन अपना बेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सफरिंग फ्रॉम द लिमिटेशन, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. ओके, हम सबको याद होना चाहिए कि जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, so we are recording it based on the purchase price. That means based on the price at which the fixed assets were purchased. So if we are purchasing our fixed assets at some price and we are showing it in the balance sheet minus depreciation every year, so basically what are we reflecting? We are reflecting that the fixed assets are existing with us and they are getting reflected at a price which is historical in nature. That means it has got no relevance with the current market price. तो ये आपका लिमिटेशन भी थी जो आपने अकाउंटिंग की लिमिटेशन में पढ़ा था, और ये आपका रोल भी है. और रोल क्या है कि आप अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर जो डेटा प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो एक हिस्टोरिकल डेटा होता है. यानी कि आप उससे आप समझ सकते हैं कि एक एसेट को किस प्राइस पे खरीदा गया था और उस पे कितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं. बट in comparison to the market price, it has got no relevance at all. Okay, next point is role as service activity. Role as service activity. Why are we saying that it has a role to play as a service activity? Because it is providing you the service of generating the quantitative information, sorry, and that quantitative information is getting conveyed to all the parties so that they can make their respective decisions. So this is one of the service. That means when we are communicating the information regarding the organization to the people, we are actually serving the people, the interested parties, by providing them with such information, right? So this is treated like a service activity. So when we say that we are communicating the financial statements,
So we are basically serving the end users with all the quantitative information that has got recorded in the financial statement, and that is now getting conveyed to the parties interested. Okay, so anybody having any doubt, please ask. Any doubt regarding any of the point that we have just discussed? Please ask your doubts. Okay, I hope you are all able to hear me clearly. Can you all hear me clearly? Please write it in the chat box. Can you hear me clearly? Okay, now I've got the point. There, okay, so we are all able to hear clearly, very clearly. Okay, everybody. So now there's a doubt. बिकॉज पता है क्या होता है, मुझे आदत हो गई है 11th B से डाउट्स के आने की. जब डाउट्स नहीं आते तो मुझे लगता है या तो बच्चे सो गए हैं, या तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ एरर हो रहा है. तो आई गेट अ लिटिल वरीड अबाउट यू पीपल, राइट? Okay, everybody, I think this is a wonderful response that I'm receiving, that everybody has heard and has understood the complete topic. Only point that you have not understood is the third point. So let me go back to the third point again. And the third point is saying that role of providing historical records. Okay, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी जो फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो रिकॉर्ड होते हैं उनकी परचेज प्राइस पे. दैट मीन्स परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन विच वी आर चार्जिंग एवरी ईयर, और फिर उसको रिड्यूस करते हैं और वही बैलेंस हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं. तो अगर मैं ये देखूं कि जो मेरे बैलेंस शीट में वैल्यूज रिफ्लेक्ट कर रही हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वो कौन सी वैल्यूज है? वो है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट. मींस वो चीजें जिस प्राइस पे आपका एसेट परचेज किया गया था, वो उस बैलेंसेस को लेकर बनाया जा रहा है. आज के डेट उसकी क्या बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, राइट? तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट द यूजर्स टू whom we are providing this financial information, to whom we are communicating this financial information, is actually going to receive the historical records. यानी कि वो records जो बनाए गए हैं वो हिस्ट्री हो चुकी है. कुछ भी इसके अंदर करंट मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखकर नहीं डाला जाता है. वो सब ट्रांजैक्शंस जो हो चुके हैं, आप उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं और उसी के बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, जिसके बेसिस पे आपका आता है प्रॉफिट या लॉस, और उसी फिगर्स को यूज करके आप बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, जिसके अंदर आपका आता है the position statement, which is called the balance of liability or asset on any given point of time. Okay, there is the doubt in second point also, role of information system. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम quantitative data share कर रहे हैं, this is basically working as an information system for us. That means जो भी आपकी accounts बनाए जाते हैं, वो एक तरीके से आपका डेटाबेस बन रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो आप बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड. तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है जिसको आप शेयर करते हैं. द ओनली लिमिटेशन विद विच इट इज सफरिंग फ्रॉम इज द lack of qualitative data. That means we are not discussing here any qualitative factors which is actually affecting the business enterprise. And qualitative factors here we mean that who all are the people who are taking care of the business, due to which this business is earning profit, or who all are the suppliers, or which all banks is lending funds to the organization. So this is something which is not getting disclosed in the final accounts, and so we can say that only the quantitative information is getting provided to the interested parties. Okay, last doubt, how accounting be a service? Okay, जब आप accounts बनाते हैं बच्चे, तो आप जब इसे communicate करते हैं, तो communication is a service, right? अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से. अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. इज इट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस? द आंसर इज इट इज अ सर्विस, दैट आई एम सर्विंग यू विद द आई एम टीचिंग यू. दैट मीन्स दिस इज अ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग टू यू फॉर कंडक्टिंग बाय कंडक्टिंग द क्लासेस, राइट? सिमिलरली जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाता है,
तो वो उसे जब कम्युनिकेट करता है तो उसको सर्विस की तरह माना जाता है. दैट मीन्स बाय कम्युनिकेटिंग वी आर serving the financial information to the parties interested so that they can take their respective decisions, right? So this is service. Okay, now there is again a point for re-explaining of point number 1. I think मैंने चारों पॉइंट ही फिर से समझा दिए ना. ओके, चलो अब पहला पॉइंट भी समझ लेते हैं. रोल एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. रोल एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज सेड दैट अकाउंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट इट टू द पार्टीज इंटरेस्टेड. कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अकाउंट्स बनाकर. तो अकाउंट्स बनाना यानी कि अकाउंट्स को बनाना और उसे कम्युनिकेट करना, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ बनाने की अभी. तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो हम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली सर्विंग एज अ लैंग्वेज. जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में बात कर रही हूँ, सो दिस इज द लैंग्वेज इन विच आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक टू यू. सिमिलरली अगर बिजनेस में पूरे साल में क्या हुआ है, उसके क्या ट्रांजैक्शंस हुए थे जिसको रिकॉर्ड किया गया है और जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, तो वो जो हम कर रहे हैं वो क्या हुआ? अकाउंट्स बनी लैंग्वेज ये कम्युनिकेट करने के लिए कि पूरे साल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं. एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर so that anybody who is referring to it at the end of the year would be able to take their respective decisions based on the data which is getting communicated. Okay, this was the last topic, that is role of accounting. Now there is a doubt which I have just received. Can you please give example of single entry and double entry system again? Okay, single entry and double entry को हम फिर से समझ लेते हैं. सिंगल एंट्री में मैंने बताया था कि सिंगल एंट्री के अंदर हम सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, और मगर उसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहेंगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रही है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा. कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं है, which is classified into 3 category: real artificial personal, natural personal and representative personal, तो उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है. तो अगर मैं कहूँ कि आई एम परचेजिंग फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन सिंगल एंट्री के केस में इग्नोर की जाएगी. मगर जब यही ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. और हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वी आर परचेजिंग द फर्नीचर ऑन क्रेडिट. दैट मीन्स हमारा कोई सप्लायर है, मान लेते हैं उस सप्लायर का नाम ए है, तो द जर्नल एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट. दैट मीन्स हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि हमने फर्नीचर खरीदा और किससे खरीदा? ए से खरीदा. ये पूरी दोनों एस्पेक्ट्स डेबिट और क्रेडिट की रिकॉर्डिंग होगी आपकी डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग में. मगर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपका कैश इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स कैश में अगर हम डील नहीं कर रहे, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपकी नहीं होती है. ओके, अब मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट एंड रियल अकाउंट. बच्चे मैं अभी इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा, क्योंकि अभी आपको ये सारे रूल्स समझने के लिए, ये सारे प्रिंसिपल समझने के लिए चैप्टर नंबर 2 और 3 समझना होगा. सो लेट्स गो सीक्वेंशियली, राइट. जो मैंने आपको कल अपने YouTube वीडियो में बताया है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार उसे फिर से देखें, राइट. और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं इसमें अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वी आर गोइंग टू फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहता है कि every transaction will have dual aspect, and dual aspect means one is debit, the other one is credit, and debit and credit will always be equal and opposite to each other, right. यानी कि जितना डेबिट करेंगे हम उतना ही क्रेडिट भी करेंगे. ये कैसे काम करेगा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम करेंगे चैप्टर 3, 4 एंड 5, राइट. तो आप मेरे साथ साथ चलते जाइए. कोई भी चीज जो नहीं समझ में आ रही है, जितना अभी आपकी समझ में आने के लायक है, मैं वो बताऊंगी. बाकी आप और उसको डिटेल में समझेंगे, जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, वो सब मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी तब समझाती जाऊंगी. क्योंकि कल जो मैंने आपको समझाया था
that was only a preview of the rule that we are going to use for the purpose of recording our transactions. मगर ये अकेला रूल नहीं है, इसके साथ और भी रूल्स होते हैं. वो क्या होते हैं, कैसे करेंगे उसको, ये सब हम समझेंगे अपने आने वाली क्लासेस में. Now let's start with chapter number 2. चैप्टर नंबर 1 हम फिनिश कर चुके हैं. आई वुड एक्सपेक्ट कि एवरीबडी, आप सब लोग आप नोट्स कंप्लीट कर चुके होंगे. आई एम श्योर. नाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग दैट यू विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. तो एक्सरसाइज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर, जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज में वी हैव गॉट सम रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस, then we have got understanding based question. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, just go through it. If there are any doubts to anybody in any of the questions, क्योंकि ये questions के साथ आंसर भी लिख रहे हैं, so if there are any doubts which are existing, so you can always clear your doubts. Secondly, आपके पास यहाँ पे अभी सब कुछ, yes, यहाँ पे सब कुछ solved है आपके पास PDF कॉपी में. तो आप वो सब questions एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे. नोट्स आपके पास ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट? जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई एम श्योर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डैश इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो डैश, so accounting is an art of recording transaction, right? Then अब ये सब जो ट्रांजैक्शन, जो आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब आपको सॉल्व करने हैं. ये सॉल्व करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, राइट? इफ यू ऑलरेडी आर हैविंग डीके गोयल बुक, तो आप डीके गोयल को भी रेफर करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इफ देयर इज नो डाउट्स, ओके, देयर इज अ आंसर. दिस इज राइटिंग बुक कीपिंग. सो ओके, बुक कीपिंग मतलब वो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, whereas bookkeeping is only an art of recording and classifying. Okay, so this is okay, there's a little confusion in it. तो आप अब इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि आंसर रेफर मत कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. अगर सॉल्व करने वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों आया और दूसरा कुछ क्यों नहीं आया, राइट? सो इट इज गुड दैट आंसर इज गिवन विद every exercise, but I would still suggest you do not refer to the answers before solving the questions. और आप मान के चलिए कि अकाउंट्स में जिस तरीके से बुक लिखी गई है, काफी सारी मिस्टेक्स थी इसमें जब हमने इसको लास्ट ईयर भी रेफर किया था. तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसकी वजह से आप इसे रेफर मत कीजिए. प्लीज रेफर दिस बुक, बट इफ देयर इज एनी डाउट व्हिच इज स्टिल एग्जिस्टिंग, you can always clarify your doubts and I would be more than happy to help you out with that. Okay, now let's start with the second chapter. Okay, let me find it out. Where is the second chapter? Okay, there is one doubt that I have just received. Ma'am, do we have to copy these questions in our notebooks? बच्चे, you don't need to copy these questions in your notebooks. आप उसको कॉपी कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, मगर आप अगर उसको चाहें तो सिर्फ आंसर मतलब राइट डाउन द बुक. जैसे अगर आप एस.टी. शर्मा रेफर कर रहे हैं तो राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक. उसके एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एमसीक्यूज वगैरह को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट डाउन द पेज नंबर और द चैप्टर नंबर एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, राइट? You actually don't need to write down the complete question for every question that you are solving. पर अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट मी ओपन द चैप्टर नंबर 2 फॉर यू. Okay, so let's start with chapter number 2. So chapter number 2 is your basic accounting terms. और अब ये जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना और समझना, बिकॉज इससे हमको और क्लैरिटी आएगी सारे कॉन्सेप्ट्स की, राइट? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं, और ये सारे टर्म्स आप समझते जाएंगे एक एक करके, और ये इन सारे टर्म्स को समझकर आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो आप यूज करने वाले हैं, वो और बढ़ जाएगी और बेहतर रहेगी आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए.
Okay, so let's start with the first term that we have here is business transaction. Okay, so business transaction, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, that business transaction means any event which is monetary in nature and which we are going to record in our book of accounts, right? So that is called our business transaction. Okay, wait for a second. I think I'm receiving some chat. Okay, there is one doubt. There, ma'am, I have Girewal, so can I do it from there? You can do it from anywhere, बच्चे. I have got no issues. आप कहीं से भी शुरू कीजिए और कहीं भी आप उसको यूज कीजिए. Everything and every book is accepted. और आपको जो भी डाउट होगी अपने उस पर्टिकुलर बुक से आप उसको यूज कर सकते हैं. देखिए मेरे पास इस वक्त किसी भी और बुक का पीडीएफ कॉपी अभी तक नहीं आई है, इसीलिए आई एम यूजिंग दिस बुक राइट नाउ. बट अदरवाइज आप जिस भी बुक को पढ़ेंगे उसके अंदर से जो भी सेगमेंट आपको नहीं समझ में आएगा, यू कैन ऑलवेज आस्क. ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फाउंड कि डीके गोयल इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, उसको समझना ज्यादा आसान है. एससी शर्मा में गलतियां काफी सारी थी. टीएस ग्रेवाल इज लिटिल अबव द लेवल दैट वी फॉलो. मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं आपको उसके डाउट्स नहीं सॉल्व करूंगी, बट ऐसा कह सकते हैं कि सेक्शन ए और बी में क्योंकि एक ही बुक चलती है इसीलिए टीएस ग्रेवाल को प्रेफर नहीं किया जाता है, बिकॉज टीएस ग्रेवाल का जो लेवल है वो सेक्शन बी के हिसाब से ठीक है, मगर सेक्शन ए में हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको की अकाउंट्स समझने में मुश्किल होती है. तो उसके लिए हम जो बुक रखते हैं वो एक ऐसी बुक प्रेफर करते हैं जो थोड़ी सी मीडियम लेवल पे चले. मतलब ऐसा ना हो कि आपका वो बच्चा समझ ना सके इस टॉपिक को, राइट. बट अदरवाइज सिंस वी आर इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन राइट नाउ, तो आपके पास जो भी बुक्स है आप उसको रेफर कीजिए और पढ़ाई कर सकते हैं और डाउट्स पूछ सकते हैं. Okay, so let's start with business transactions. Let's come back to the topic. So this is our chapter number 2, basic accounting terms. Okay, so business transaction, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, business transaction means it is an event, any financial event which is taking place in an organization during a period of 1 year, which finds its place in the book of accounts, is called the business transaction. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्सचेंज जो कि आपके पूरे साल के अंदर होता है, which is related to money, is going to be recorded in our books of accounts, right? So let's read it. The term business transaction refers to the financial transactions entered into between two parties. Two parties यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज जो भी एक्सचेंज होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है. जैसे मैंने आपको कहा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट पार्टीज हैं. मतलब बिजनेस ने अगर बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, तो वो उसकी इंटरनल लाइबिलिटी हो जाती है. और वो लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो लोग हैं, राइट. हम उनको एक लेकर नहीं चलते. And this is one of the principle which is called separate legal entity. That means business is different from the businessman and they are not taken as one party. And इसीलिए जब उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड किए, तो बिजनेस के लिए वो उसका बना लाइबिलिटी, और बिजनेसमैन के लिए जो उसने प्रोवाइड किया है फंड उसको कहा जाता है कैपिटल. ओके, because capital is that amount which we are investing in the business for the purpose of starting the business. Okay, so this is between two party. Further हम पढ़ेंगे इसे. It involves exchange of goods or services for a monetary consideration. यानी कि जहां monetary consideration नहीं होगा, चाहे फिर वो immediate हो या later on date पे हो, मगर जहां monetary consideration नहीं होता हम उस transaction को record नहीं करते, right? तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स. मैंने पहले ही बताया था, गुड्स मींस द प्रोडक्ट इन विच वी आर डीलिंग. अगर मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ तो दो ऑप्शन है मेरे पास परचेज करने के लिए. आइदर आई विल बी परचेजिंग इट इन कैश और इन क्रेडिट. तो कैश में परचेज करेंगे, इमीडिएटली कैश पे कर देंगे, आपका ट्रांजैक्शन वहीं कंप्लीट हो जाता है. अगर आप क्रेडिट में परचेज करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपका जब तक कि आपको पैसे मिल नहीं जाते या फिर वो डिनाई नहीं कर देता पैसे देने से आपका बायर, तब तक वो ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट करता रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स. तो अगेन एक बार जो चीज परचेज है
वो दूसरी पार्टी के लिए सेल की ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि जब आप गुड्स बेच रहे हैं, जिस चीज आप डील कर रहे हैं, जब आप उसे बेच रहे हैं, तो उस केस में भी वही सिचुएशन है कि अगर आपने उसे कैश में बेचा है तो आपको कैश इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, और अगर आपने उसे क्रेडिट में बेचा है तो आपको कैश कुछ टाइम बाद रिसीव होगा, रिकवर होगा। देन नेक्स्ट इज रिसीट फ्रॉम डेटर्स। रिसीट फ्रॉम डेटर्स मतलब जिसको मैंने सामान बेचा था क्रेडिट में, उसने मुझे पेमेंट कर दी है, सो दैट इज कॉल्ड रिसीट फ्रॉम डेटर्स। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेजेस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे मैंने क्रेडिट में सामान परचेज किया था, so we have created that other party which is known as creditor, and now I am going to make the payment to that creditor, so that is again a financial transaction. Then purchase or sale of fixed asset, payment of expenses। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो आप कर रहे हैं फॉर द बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आप घर में बैठे हैं इस वक्त और आप वाटर फैसिलिटी यूज कर रहे हैं तो वाटर बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज आएगा, अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो रेंट भी आएगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुए आपके एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह के खर्चे को बियर करती है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग इट्स ऑपरेशंस, तो वो उसकी पेमेंट करती है, तो वो उसके लिए एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जो भी सारी चीजें उसको रिसीव होती हैं वो उसकी इनकम कहलाती है। जैसे मैंने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आई एम अर्निंग कमीशन, देन आई एम जनरेटिंग डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, तो मुझे जो उसका रिटर्न मिल रहा है वहां से, वो कहलाता है डिविडेंड। सो इफ डिविडेंड इज समथिंग व्हिच आई एम रिसीविंग, इट इज ट्रीटेड एज माय इनकम, राइट। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी फाइनेंशियल नेचर की है, और ये सब आपकी रिकॉर्ड होंगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, next is features of business transaction. I hope there are no doubts to anybody. Anyone having any doubt, please ask. Okay, there are no doubts that I have received. So we have all understood that what is transaction. Now let's go further in features. तो features से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सब चीजें हमने अभी डिस्कस की है वही सब बातें इसके features में भी लिखी हुई हैं। Okay, there's a doubt regarding, can you please re-explain dividend? Okay, dividend जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको कि shares मैंने बताए थे, ownership shares मैंने बताए थे आपको कि अगर जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ओनरशिप अगर सेल करना चाहती है या फंड्स रेज करना चाहती है और वो शेयर्स के थ्रू पब्लिक को ऑफर करती है कि आप आइए और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इस शेयर को परचेज कीजिए, इस यूनिट को, इस सेगमेंट को परचेज कीजिए। सो इफ एज एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन इफ आई एम परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी, तो मेरे लिए वो क्या होगी, वो मेरे लिए बनेगी मेरी इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं किसी दूसरी कंपनी में कर रही हूँ। अब जो शेयर्स आपने परचेज किए किसी और कंपनी के लिए, उस पे जो रिटर्न, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं, जब आप बैंक में पैसे डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न, आपको मिलता है इंटरेस्ट। सिमिलरली जब मैंने इन्वेस्टमेंट की किसी और कंपनी के शेयर्स को परचेज करके, विच इज माई इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, तो मुझे क्या मिलेगा उधर से, मुझे मिलेगा डिविडेंड। That means the return which I am going to receive on my shares is called dividend. Okay, I think this is clear. Now let's move on to the features. So the first feature is it involves economic activity. That means everything. Okay, now there's one notification that I've received that, okay, we are going to sign out in 4 minutes. Everybody, if we are not able to finish this transaction term, please sign in again. Let's complete this transaction term today, and उसके बाद के हम terms कल पढ़ेंगे, right? तो आज के लिए आपके पास सिर्फ इतना ही काम है कि आप अपना first chapter revise करेंगे. If there is any doubts, please ask those doubts tomorrow. Plus, if you need to solve the objective questions, that is MCQ and fill in the blanks in your notebook, and for the questions which are given already in your book, in your PDF copy, जो कि already solved है, just go through it once so that आपको समझ में आए कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं। और दूसरा जो आपका काम है वो ये है कि आपको आज
ये जो फर्स्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर ट्रांजैक्शन, वो आप रिवाइज करेंगे, राइट? Okay, everybody. So let's try to finish this term before this meeting ends. But if it is finishing, not finishing, please join in again for few more minutes. Okay. So let's complete this term. So feature, the first feature is it involves economic activity. मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिजनेस के अंदर जो भी चीजें फाइनेंशियल नेचर की हैं, यानी कि मनी रिलेटेड है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. That means something which is not involving money in it, in the exchange process, is not going to be recorded. Okay, next one is it is entered into between two parties. मतलब ये ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है. अब वो दो पार्टीज आपकी एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं, यानी कि आपका बिजनेस और कोई सप्लायर या कोई कस्टमर, या फिर आपका बिजनेस और आपका बिजनेसमैन. तो दो पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम. नेक्स्ट, उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन. दैट मीन्स जब भी आप गुड्स या सर्विसेज जिसमें भी आप डील करते हैं, आप उसको क्यों बना रहे हैं या क्यों आप उसको सेल कर रहे हैं, सो एज टू जनरेट रेवेन्यू, जिसको हम कहते हैं सेल्स. तो जब आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, एंड व्हेन यू प्रोवाइड दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर, व्हाट डू यू रिसीव इन रिटर्न? You receive money, right? So that means you are dealing into any product or services for the purpose of receiving the money, which is called sales in common language, and in accountancy we call it revenue. Okay, so next feature is if it affects the accounting equation of the business enterprise. अब accounting equation का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि बैलेंस शीट इक्वेशन. मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में एक साइड पे हमने देखा था कि एसेट्स आते हैं और दूसरी साइड पे आती है आपकी लायबिलिटी और कैपिटल. तो ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि जब हम एसेट्स लिखते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन क्या बनी, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं. इट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. और ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट हमारी एट द एंड मैच हो जाती है, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं. तो इससे हमने क्या रेफर किया कि असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल. और यही वो चीज है जो जस्टिफाई करेगी कि मैंने अपने अकाउंट्स में कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है. दैट मीन्स आई कैन चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी बेस्ड ऑन दैट. ओके, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. दैट मीन्स कि जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में हो रही है, वो एट द एंड उसका इफेक्ट या तो किसी एसेट पे पड़ेगा, या तो किसी लायबिलिटी पे पड़ेगा, या कैपिटल पे पड़ेगा. एंड फाइनली दिस बैलेंस शीट इक्वेशन should match each other, both the sides. That means assets should be equal to liability plus capital. Okay, next one is transaction may be cash transaction or credit transaction. मैंने अभी ऊपर बताया था, आपको एग्जांपल दिया था कि ट्रांजैक्शन एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, जहां पे आपको कैश तुरंत मिल जाता है या आप कैश तुरंत पे कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां आपने ट्रांजैक्शन तो की, मगर तुरंत आपको कैश रिसीव नहीं हुआ या तुरंत आपने कैश पेमेंट नहीं की. तो क्रेडिट की जब हम बात करते हैं, तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट क्रेडिट में बेच रही हूं, तो जो मेरे पास मेरी अलग दूसरी पार्टी बनेगी उसको कहा जाएगा डेटर. और जब मैं क्रेडिट में परचेज कर रही हूँ, तो मेरे लिए जो दूसरी पार्टी मेरा सप्लायर क्रिएट हो रहा है, उसे कहा जाता है अकाउंट्स में क्रेडिटर, right? And this is going to sign out in less than a minute time. Please join in again so that we can complete this point of transaction. Okay, so ये था मेरा कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ये मेरे दो तरह के ट्रांजैक्शंस हैं. If there are any doubts to anybody in the features or the types of transactions, please ask. Okay, so I think there are no doubts in it. So once we are joining back again,